सुप्तेषु जागृति य एष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्लं तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चनात्यपि कश्चन एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता. I once again request all of you who are standing, please come and occupy the seat. Everyone will be given the members directory and referencer. The faculty of the session, CA Dr. Girish Ahuja, the person who has been the most active, the most young faculty, because who has delivered 8 sessions on budget yesterday throughout the day. Up to in the night, 11 o'clock, he has been delivering sessions, and today morning, he is at Ahmedabad. Have a big round of applause for Dr. Girish Ahuja. The level of commitment which he has done, he is yesterday 8 sessions, today morning at Ahmedabad, directly going to the Bombay for budget sessions, tomorrow Kolkata, so on and so forth. So this is the kind of dedication that Dr. Girish Ahuja, the faculty, has been given. The chairman of the biggest region of India, the most dynamic, the most action brand, C.A. Vishnu Agrawal. The representatives of region from Ahmedabad, proud for all of us, the Secretary of WRC, C.A. Aniket Talati, Regional Council members, C.A. Pushparam Khandelwal, Regional Council members, C.A. Priyam Shah, the team Ahmedabad branch, which is the backbone of all the seminars, activities which we have done throughout the year. And the most important, executive committee members of Ahmedabad branch, C.A. Harit Dariwal, Vice Chairman, C.A. Ganesh Nadar, Secretary Ahmedabad branch, C.A. Fanil Shah, Treasurer Ahmedabad branch, and the team members who has done lot of continuous supports throughout the year, managing committee members, C.A. Vikas Jain, Images Past Chairman, C.A. Nirav Choksi, C.A. Bishan Shah, C.A. Rajiv Ravani, all the past RCM from Ahmedabad, past Chairman of Ahmedabad branch, past CCM, and my dear members, I welcome all of you to the technical sessions on budget of direct taxes by Dr. Girish Ahuja at the beautiful venue of Riverfront. It's a pride, privilege, and it's an opportunity for me to address the biggest conference of the year of my tenure as a chairman of the branch. I take this opportunity to give you the brief glimpses of the events and activities which we have done throughout the year. During the year 2017, the Ahmedabad branch has done more than 308 CPE activities in 1 year, clocking the CPE, highest CPE hours throughout the since history of 1,49,000 CPE hours in this year. Total number of activities which we have done throughout the year is around 600 plus activities, which includes members, students, non-CPE and CPE activities. I would like to take the opportunity to brief you about 3 major initiatives which the Ahmedabad branch has taken during this year. First is a digital branch initiative. The website of Ahmedabad branch has been revamped completely this time, and what we have done, the few features which includes the online articles vacancy module, members module, indexing of all presentations, resources on the websites, and various new features. Also, throughout the year, we have used the Google Form and other digital initiatives to ensure that we reach to members at regular intervals.
The Facebook Live has been the most important things which you have done this year, and all major events, programs are done Facebook Live. Because I care about all of you, even if you are not able to come at the venue, but however, the most important events has to be on Facebook Live, so anybody across the region, across India can have access to the dignitaries and faculties of India. This event is also a Facebook Live, and anybody can access. Even the members from Mehsana, Gandhinagar and other regions have facility and flexibility to watch this particular event. Second most important thing which we have done is the infrastructure facilities. We have revamped the completely coaching class renovation is done to provide the best and best facilities to all the students. Also, the ground floor has been renovated to provide the best access and the state-of-art facilities for members and students. The terrace has been also been renovated to have provide a small canteen facilities for all the students and everybody who is coming from across the region. Another third one is about the initiatives for the satisfactions of members and students. During the year, we have started taking the feedbacks for all the DCO-related students and members' queries, which has really increased the satisfactions of the members and students when they satisfy the queries. Faculty's coaching class feedback has been started. Members directory has been launched after the initial period of 4 years. And the most important thing, we always believe that we want to be updated and updated with the updates which happens. So every day, wherever the updates are being there in GST or anywhere, we are there to provide you the most and fast, quickest updates to you. Even at the night, 10 o'clock, in the morning, 7 o'clock, we are trying to ensure to give the best and fastest update to you, so we are ahead than the other world. I also like to take this opportunity to thank a lot of persons who have supported me throughout the 10 years. The most important thing I would like to mention, which I have never mentioned since so many years, is my father, C. Naresh B. Patel, who has been the source of inspiration for me, and he has been the main person for motivating me to do a lot of activities throughout the year. The values, integrities, disciplines, commitment which he has imbibed, I have tried to take and give in all throughout the year. Days and time which you have spent throughout the last year is not possible without the support of my staff and the family members. I have been continuously absent in my office, but however, my brother, family and other staff has given a lot of patience to me. Hence, never ever they uttered a word why you are not come. Always they said that go and do the job for ICI, and that has been the motivational spirit for me. And at the end, if I look at whatever sacrifice is done, it's always at family. My wife and kids, I'm not able to spend time with them because first is ICI, then office, and last is always a family. So that sacrifice is something which cannot be even understood. Now coming to the most important thing, whatever activities which you have done, it is not possible without the support of my team Ahmedabad branch. They are the real backbone of all the activities which you have done throughout the year. They have stood through each and every activity throughout the year. Executive members has been there for all major decisions, everyone which you have done, and the team ICA Ahmedabad branch has been throughout the year to ensure that the activity should go on. Whatever support I required, they are always there. It's only because of them it is possible for us to have this kind of level activities. So big round of applause for my team Ahmedabad branch. And we are always fortunate to have the regional council member from the branch. They are always a guiding and motivational spirit, because whatever support we want for region or center, 3 RCMs who have been always there to support any initiative. Wherever we say yes, positive support and vibration they have received, we are thankful to all these 3 RCMs for the dedicated and 100% support for the Ahmedabad branch. And honorable, my grassroots level chairman of the second largest branch of the India and the first largest branch of my region, C.A. Chintan Patel, very dynamic, very energetic. Today's faculty on the budget analysis, very vibrant person, C.A. Girish Ahuja ji, respected Girish Ahuja ji. My secretary in the western region, C.A. Aniket Talati, regional council member, C.A. Purushottam Khandelwal, C.A. Priyam Shah, Vice Chairman of the Ahmedabad branch, C.A. Harit Dhariwal, Secretary Ganesh Bhai Nadar,
Treasurer Fenilsa, immediate past Chairman CA Vikas Jain, Nirav Chokshi, Bishan Shah, all past Chairman of the Ahmedabad branch, all senior in the profession, ladies and gentlemen. I thanks to the Ahmedabad branch to invite me in this large gathering to share my views. Friends, from my bottom of heart, I thank to my great leader CA Chintan Patel to invite me and sharing for my views. Friends, this particular year, to fulfill my vision, scale up, rise up, the Chintan Patel has done excellent work for this profession, for the student and for the members, for the Ahmedabad branch. He has not served the only Ahmedabad branch, but whatever program he has done, all program was the Facebook Live, and I have seen that more than 2 lakh chartered accountant has benefited not only from the Ahmedabad, not only from the Gujarat, but also across the country, because when faculty comes like Girish Ahuja, each and every person from India, they want to hear. Friends, if now you see the Facebook Live update, already 15,000 chartered accountant are continuously doing the Facebook Live on this program from morning 8:30. Friends, my 3 regional council member, my dedicated 3 diamond you have sent from the Ahmedabad, my secretary CA Aniket Talati, Purushottam Khandelwal and Priyam Shah. Friends, you have not believed that in last 365 days, Purushottam Khandelwal and Aniket Talati was with me 150 days. Friends, whenever I went to any branch, whenever I went to any study circle, whenever I went to represent to any matter of with the government of India, friends, both Aniket Talati and Purushottam Khandelwal always accompany with me, and whenever I went to the Prime Minister office also, he always come and support me, both the gentlemen. Friends, Priyam Shah, since this year was the GST year, Priyam Shah has great support given me in the GST activity. Whatever publication I published from the Western region, our Priyam Shah, dynamic regional council member, has given me support for the GST. Whatever representation we have given before the GST council, Priyam Shah always come with me for the given of the each and every representation. Friends, I request everyone, please join hand for my all the 3 regional council member, what you have sent from the Ahmedabad. Friends, at the WRC level, we have also done very good work, very excellent work. In last 365 days, we have done the program for the 365 days for the student and member. Most particularly, this particular year, I have done 365 days program for the student, because I always thought that when any student become a chartered accountant after 3 years, we always thought that if I have done my articleship from XYZ firm, I also reach at that particular level. Friends, because I understand in SME chartered accountant firm, in the proprietorship firm, in the partnership firm, there is no proper mechanism for the training system for our article assistant. Friends, overall development of my article assistant, this particular year, we have given the training to 1 lakh student of my article assistant for the overall development of the article assistant. Friends, our Girish Ahuja has delivered almost 3,000 lectures across the country during his professional career. Friends, person like Girish Ahuja, yesterday he has given 5 lectures at Delhi. Today morning he has given at Ahmedabad, and today evening he will deliver the lecture to 4,000 chartered accountant at Mumbai. It's the first time history in the Mumbai that the person like Girish Ahuja will deliver the lecture in the Mumbai. Tomorrow morning he will deliver the lecture at the Calcutta. Friends, I request everyone, please join hand for the Girish Ahuja, because he is totally dedicated for the profession. Friends, this particular year, I have interacted with more than 15 our government officials. I have requested each and every government official to come to our Bandra Kurla complex building. Friends, when they came to our Bandra Kurla complex building, then they understand that what we chartered accountant do work for the nation building. Friends, when our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has launched the GST on the 1st July, that particular day in my western region, there are 98,000 chartered accountant, and out of 98,000 chartered accountant, 90,000 chartered accountant was updated with the GST law. And the GST law is success because of all my chartered accountants sitting here. I thanks to my each and every chartered accountant for supporting the nation building and supporting our Prime Minister motto. Friends, our Dhinal Bhai, Central Council member, has also supported me, my each and every activity, and our past
President CA Sunil Talati ji from Ahmedabad. Whenever I call to Sunil Talati ji at Mumbai, always he came and support me. Friends, this particular year, more than 100 faculty came from the Ahmedabad to deliver the lecture in Mumbai. My thanks to each and every chartered accountant sitting here to support me. Friends, I have again meeting with the Sri Asmukh Adiya ji and our Sushil Chandra ji, CBDT chairman, before 15 days interactive meeting. I have given 23 suggestions, and today I am proud to say that 14 suggestions they have accepted in this Union Budget 2018. Friends, my each and every initiative is always supported by Aniket Talati, Priyam Shah and Purushottam Khandelwal, and my each and every chairman of my branch. We have 35 branch in Western region. My each and every branch chairman, study circle convener always support me. Friends, every year we got the best region award, and with blessing of each one of you, today, I hope that this year again we will get the best region award. This Ahmedabad branch is always get the best branch award, and my best wishes for the Ahmedabad branch that today all the result will be declared at 3 o'clock, and this Ahmedabad branch will be again got the best region award from the India. Friends, with these words, once again I thanks to each one of you, and thanks to Chintan Patel to invite me and interactive with more than 3,000 chartered accountant. Friends, I thanks to each one of you for supporting me throughout the year. Thank you, friends. Thank you, Chairman. A very good morning to all of you, friends. And I have been given the pleasure of introducing the faculty for today, Dr. Girish Ahuja ji. Well, honestly, I think a faculty of the stature of Girish Ahuja ji doesn't need any introduction in Ahmedabad. बट सर, हम वेदों में पढ़ते थे, किताबों में पढ़ते थे, नदी किनारे ऋषि मुनियों से अगर ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान अच्छे से अंदर चला जाता है. तो आई एम श्योर टुडे आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर सिटी ऑफ अहमदाबाद, द स्टेट ऑफ गुजरात, at this beautiful venue of the riverfront. It's the first time that the Ahmedabad branch is doing an event here. So my compliments to the entire team of Ahmedabad, and most importantly, a great thanks to all the members of Ahmedabad for coming here in large numbers. You guys are truly the spirit and the reason behind all these activities. So thank you all. Friends, 2930, 2930. Those are the number of lectures Girish Ahuja ji has taken till date on the subject of direct taxes. I think it's a phenomenal number considering his age and experience. He has kept a record of all the seminars that he has attended in his life. And believe me, friends, it is not for remuneration, it is not for anything, it is just for the love of the profession that Girish Ahuja sir is always present and delivering lectures across the country. So sir, we are grateful to you. As a formal introduction, he's done his graduation and post-graduation from Sri Ram College of Commerce, Delhi. He was a rank holder at both the intermediate and final level. He is a visiting faculty not only at the ICAI but also the ICSI and the ICWA. And most importantly, currently, he was a member of the 7-member panel which was constituted by the Government of India to recommend changes in the direct tax law and the legislation which has been there in place for 40 years. And I'm sure, sir, that under your able leadership, we will be able to see a new draft legislation very soon which will change the contours of direct taxation for all of us. With these words, friends, I request all of you to please welcome our honorable faculty for today, Dr. Girish Ahuja, with a loud, resounding applause. Before I hand over the session to him, I would request Vice Chairman of Ahmedabad branch, Harit Bhai, along with the Treasurer, CA Fenil Bhai, to please welcome WRC Chairman, CA Vishnu Agarwal, with a floral bouquet. I would now request CA Chintan Patel, Chairman of Ahmedabad branch, to present a memento to WRC Chairman, CA Vishnu Agarwal. I would now request Regional Council members Purushottam Khandelwal and Priyam Shah, my colleagues in the council, to present a floral welcome to faculty of today, Dr. CA Girish Ahuja sir. And finally, on behalf of the entire city of Ahmedabad, I would request the managing committee members, CA Vikas Jain, Neerav Bhai Choksi and Bishan Bhai, to present a memento along with the entire group to our
chief guest of today, the man of the match, the man of the series, the person whom we are all waiting to hear, Dr. Girish Ahuja, sir. Now, the most important moment which we all are waiting, I invite faculty CA Dr. Girish Ahuja to please address us. Thank you so much. Chairman of the WRC, CA Vishnu Agarwal ji. Chairman of the Ahmedabad branch, CA Chintan Patel ji. Regional Council members, and of course Secretary Aniket Talati ji. The other two Regional Council members, Purushottam Khandelwal ji, Priyam Shah ji. Vice Chairman of the Ahmedabad branch, Harit Dariwal ji. Secretary Ganesh Nadar ji. Treasurer Pranil Shah. IPC, immediate past chairman, of course, Vikas Jain. These other executive members, Neerav Choksi, Bishan Shah ji, and Rajiv Rivana, ladies and gentlemen. Well, friends, what do you think about the budget? Is it a good budget or a bad budget? मुझसे पूछिए, it is a very good budget. You may not like it because everybody is considering that 10% problem of long-term capital gain. I know that. But that is not the fault of the government. That is the fault of the stock exchanges people, though, who had come and given the presentation that there should be a capital gain, long-term capital gain on shares. We'll discuss about that. There is nothing to worry. Many changes have taken place. Smaller, I mean, this time only 53 changes are there. Every year there are more than these changes. But let me tell you, some promises have been executed. Of course, they have done. And maybe somewhere they have tinkered with it, which I have also personally not liked. I'll come to that in the due course of time. Before I take up clause by clause discussion, two basic things. The promise was made that we will reduce the tax for company excesses from 30% to 25%. Last time the attempt was made that who had a turnover of 50 crore, I mean up to 50 crore during 2015-16, they will be paying tax at the rate of 25%. This time, now turnover of 2016-17, if it is 250 crore or less, 250 crore or less, the rate has been now reduced from 30% to 25%. आपको पता होना चाहिए 8,91,000 कंपनियां इसमें आती हैं. Only 1% companies, only 9,000 companies have turnover more than 250 crores. So therefore, practically 99% companies now will be paying tax at the rate of 25% and not 30%. The question is always asked, why not for partnership firm and LLP? Why only for companies? The answer is very obvious. They don't stand on the same footing. It's not a level playing field. In the case of a company, after they pay tax at the rate of, let's say, 25%, plus surcharge if applicable, plus cess, they also have to pay dividend distribution tax. And the dividend distribution tax is around 20%. It's a little more than 20%. So 25 plus 20% is the dividend distribution tax which the company has to pay. Whereas in the case of a partnership firm, there is no question of any dividend distribution tax. You once pay 30%, you don't have to pay anything else. And in the case of a partnership firm, one more thing is also there. You are allowed interest on capital. Maybe 12%, but interest on capital. There is no question of deduction of interest on share capital. So the question is very obvious. There are no level playing field. It will never be reduced to 25% unless it is decided to reduce the maximum marginal rate to 25%. It will always remain 30%. For a company, the concession had to be given because of the high dividend distribution tax also. This is the first point. Let me take clause by clause discussion and talk about that cess which has been increased from 3% to 4% in a little late.
Coming to the amendments which have taken place. First amendment is an explanation has been inserted in section 2 clause 22, explanation number 2A. That I will talk to you that at when I come to 115O, talking about deemed dividend, at that particular point of time, I will also talk about this, what you call explanation. Then there is a change in section 224, definition of income. Whenever there is new levy, you have to change the definition of income. So that's why subclause 12A and subclause 17B has been inserted in the definition of income, which I will be taking in during the course of time when I come to the discussion on section 28 or section 56. We'll be talking about that at a particular time. Next change is section 2 clause 42A, the period of holding of a capital asset. When inventory is converted into capital asset, what will be the period of holding? That I will also take up when I come to section 28. That particular point of time, this 242A will be also discussed. Next change is section 9. In section 9, we have P concept that if you have a business connection in India, the income is taxable in India, which can be attributed to that business connection in India. We don't have a complete definition of business connection in section 9, but there is an inclusive definition given. Under that, it is said that if a person has and habitually exercise the authority to conclude contract on behalf of non-resident, it is treated as a P in India or a business connection in India. The word is has and habitually exercise the authority to conclude the contract on behalf of non-resident. Sometimes what happens is they do not conclude the contract, but they do play a vital role for that. And that was not treated as a permanent establishment in India. Now the explanation words have been changed, starting from if he has or habitually authority to exercise a conclude contract and concludes contract and plays an important role for which leads to conclusion of contract on behalf of non-resident. So even if he plays an important role for which leads to conclusion of a contract, it will be treated as permanent establishment in India. This is the definition where the tinkering has been done, rightly done, because they are concluding contract, but they are showing they are not concluding contract. Contract is being concluded at a by the non-resident there, and they are not paying tax in India. Now, if you play a vital role or an important role in concluding the contract, which leads to conclusion of a contract, that will also be treated as a business connection in India. We have now e-commerce. Last time, e-commerce was tinkered, saying that we had introduced an equalization levy on what you call advertisement on electronic advertisement. Now here we have a concept of e-commerce. People are doing business, but their location is not known. Lot of business is being done, goods or services are provided in India, but that person who is providing that service, we do not know the place of residence or the location of that person and how to tax that person. That is the concept which was brought in BEPS also, base erosion profit shifting, where the concept where this concept was taken. What about this e-commerce taxation? This time they have inserted an explanation saying that if there is economic presence in India to a certain amount, economic physical presence in India, that will also be treated as economic physical presence. Actual presence we are not concerned. Economic physical presence exceeding a certain amount to be specified, then in that case this will also be treated as a business connection in India, and income attributable to that business connection should be taxed in India. ये थोड़ा non-resident का था. आइए अब अगला चीज देखें. Next change is section 10,
Clause 6B has been inserted in section 10. May not be very important to us, but since I am doing section wise, let me complete that also. We have in India National Technical Research Organization, which collects the intelligence of the technical intelligence, which is under the leadership of Prime Minister. There is a National Technical Research Organization. This National Technical Research Organization is paying royalty or fee for technical services to non-residents for rendering these services to that organization either in India or outside India. We have section 917, which says any royalty or fee for technical services paid outside India shall be deemed to accrue or arise in India, even if that doesn't have any place of business or place of residence in India. Now they have said that if this NTRO has given any royalty or fee for technical services to the non-resident for rendering these services either in India or outside India, that income will be exempt in the hands of non-resident. Not very important, but since I was doing, let me complete it. Now the next one is important. 2 years back, we have a scheme called National Pension Scheme. We all know that we can contribute to National Pension Scheme and are eligible for a deduction under 80 CCD for 1,50,000 and additional deduction also of 50,000. There is a contribution by the employee to that scheme, and there is a contribution by the self-employed person also to that scheme, which is allowed now. The question was, 2 years back, section 1012A was inserted, saying that if an employee, please note the word, if an employee opts out of this scheme, or he wants to close this national pension scheme and gets the amount, the given was 40% of the amount so received shall be exempt in the hands of the employee. Employee word tha or nahi tha. Question hai, it's not the employee who always contribute. We people also, self-employed person also contribute to national pension scheme. And suppose we also wants to opt out of it, we also want to close that scheme. In our case, the exemption was not there. But in the case of employee, the exemption was there. So now, to have that benefit also, section 1012A में सिर्फ इतनी सी चीज को चेंज किया है. जहाँ वर्ड एम्प्लॉय था, वह वर्ड असेसी कर दिया है. असेसी का मतलब ऑटोमेटिकली क्लियर होगा, whether employee or a self-employed person, if he opts out of this scheme, if he closes the scheme, then the amount which he received, 40% of the amount shall be exempt in the hands of that assessee. This is section 1012A. Next change, बहुत खतरनाक चेंज आई है सर. एक सेक्शन है सेक्शन 1023C. आपको पता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन गेट exemption under section 1023C. There is one section called section 11 where you get exemption. Charitable trust or institution get a religious trust get exemption under section 11. अब जरा ध्यान से सुनना. We have a section called 40AIA. Business का section है where if you do not deduct the tax, 30% of the expense which is will be disallowed to you if the tax is not deducted, or if after deduction not deposited on before the due date under 139(1). वहाँ ये भी लिखा हुआ है, if deposited after the due date, deduction will be allowed in the previous year in which the tax is deposited. Everything is given. But that is only for business. We have another section, section 40A, subsection 3, saying that where the payment of an expenditure exceeds rupees 10,000, it should be paid by way of an account paid check or account paid draft or electronic clearing system. Otherwise, that expense shall be disallowed. देखिए दोनों section 40A और 40A3 are for business assessee. Charitable trust or religious trusts are not doing business. So, but they are also supposed to deduct the TDS. They are also making payment exceeding 10,000, but they may be making payment by cash. To cut short that, what has been done? A proviso has been inserted under section 1023C. And secondly,
An explanation has been inserted under section 11(1), explanation 3. वर्डिंग सुनिए क्या कह रहे हैं, दोनों एक ही वर्ड कर दे. फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फंड, अमाउंट ऑफ इनकम अप्लाइड, फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन of the amount of income applied for claiming deduction, the provisions of section 40A(IA) and provisions of section 40A subsection 3 and 3A shall mutatis mutandis will also apply as they are applicable for computing the profit or gain from business and profession. मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ने TDS नहीं काटा, चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोई पेमेंट करी एक्सीडिंग 10,000, अदरवाइज देन बाई एन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट, तो वो पेमेंट एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी, वो पेमेंट एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी. अगर टीडीएस नहीं काटा, 30% ऑफ दैट एप्लीकेशन अमाउंट शैल बी डिसअलाउड. ये दो चीजें करी गई. अब जरा ध्यान से सुनना, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है. किसी ने मुझे सवाल पूछा परसों, सर मानी जाएगी ना, सपोज मैं 90% अप्लाई कर देता हूं और 90% अप्लाई करने के बाद वो मेरा 40A(3) और 40A(I) में 5% डिसअलाउ कर देते हैं, तो 85% तो हो गया, तो फिर भी मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी पूरी, तो क्या दिक्कत है? ये बिल्कुल गलत है. लैंग्वेज पढ़ी नहीं उन्होंने ऐसी. देखिए क्या लैंग्वेज है सेक्शन 11(1) की. The following income shall not be included in the total income of the person receiving the same. उसके आगे लिखा है, any income from a property held under a trust for charitable or religious purposes to the extent such income is applied for charitable purposes in India, and if there is amount set apart or accumulated, so much of the amount set apart or accumulated which does not exceed 15%. 15% तक एग्जेम्पशन है, मान लिया. लेकिन आपने क्या क्वेश्चन पूछा है कि मैंने 90% स्पेंड कर दिया है और 10% मैंने एक्यूमुलेट किया है. 90 स्पेंड किया है, एक्यूमुलेट तो 10 ही किया है, तो एग्जेम्पशन एक्यूमुलेशन की तो 10 ही मिलनी है, 15 तो मिल ही नहीं सकती. ये गलत सोच रहा है कि वहां 85 हो गया तो बाकी मेरा एक्यूमुलेट हो गया. नो, अप्लाई तो कर दिया, तो फिर एक्यूमुलेट क्या किया? आपने तो एक्यूमुलेट सिर्फ 10% किया है. उस 90 में से 5 डिसअलाउ हो गया, नॉन अप्लाइड माना गया. सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 कहता है, इफ देयर इज अ इनकम विच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11(1), दैट इनकम विल बिकम टैक्सेबल. ये वाला जो 5% है वो आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी और आपको टैक्स देना पड़ेगा. ये पॉइंट को दीजिए. ये मत समझिए कि मैंने 100% खर्च कर दिया और उसमें से 15% डिसअलाउ हो गया तो भी 85% मिलकर हो गया. नहीं, उसको जितना एक्यूमुलेट किया वो माफ होना है. आपने तो एक पैसा भी एक्यूमुलेट नहीं किया अगर 100% स्पेंड कर दिया. सो प्लीज बी केयरफुल दैट. बड़ा सीरियस चीज है कि इनको अब टीडीएस काटना पड़ेगा, इनको पेमेंट बाय चेक देनी पड़ेगी अकाउंट पे, अदरवाइज इनका ये एप्लीकेशन डिसअलाउ हो जाएगी और वो टैक्सेबल मानी जाएगी. ये सेक्शन 10(23)(c) में एक्सप्लेनेशन है और सॉरी प्रोवाइजो है और वहां एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट सेक्शन 10(38) है. बात करेंगे जब कैपिटल गेन पे आएंगे, तो मैं सेक्शन 38 को वहां पर काम करूं. नेक्स्ट चेंज इज इन सेक्शन 10(46), बेकार टाइम वेस्ट करने की है, एक अथॉरिटी की माइनर चेंज है. नेक्स्ट चेंज इन 10(48)(b), वो भी कुछ नहीं है, वो जो क्रूड ऑयल हम लाते थे फॉरेन कंट्री से, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हो गया तो उसकी एग्जेम्पशन हमारे मतलब की नहीं. आइए नेक्स्ट सेक्शन आया जो 2006-7 से अबॉलिश कर दिया. 2006-7 से अबॉलिश कर दिया गया, तो जो नेक्स्ट सेक्शन आया और वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन. हमें मालूम है प्रायर टू 2006-7 एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी एम्प्लॉइज को, विच वॉज लास्ट टाइम व्हेन इट वॉज अबॉलिश वॉज 33.1/3% ऑफ द सैलरी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 30,000. री इंट्रोड्यूस कर दी गई स्टैंडर्ड डिडक्शन. हाउ मच?
द अमाउंट ऑफ सैलरी और ₹40,000 विच एवर इज लेस। 45,000 रुपए की कर दी। बहुतों ने शोर मचाया है, क्या कर दिया? 40,000 कर भी दिया तो 19,200 जो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था 1,600 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाई 12, उसको विड्रॉ कर लिया। और एक रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस मिलता था जो 15,000, उसको विड्रॉ कर लिया। 34,200 विड्रॉ कर लिया, 40,000 का बेनिफिट दिया, तो नेट बेनिफिट तो 5,800 रुपए का है। कौन सा वादा कर दिया? सर इसकी बातें सुने आप कहेंगे किन किन को फायदा हुआ। ये गलत है कि सिर्फ 5,800, मानता हूं। पहला पॉइंट, अगर वो रिटायर एम्प्लॉई है और उसको पेंशन मिलती है, और रिटायर एम्प्लॉय 60 साल से ऊपर वाला है, अगर उसको पेंशन मिलती है तो उसको कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता था, उसको कोई मेडिकल रीएम्बर्समेंट नहीं मिलता था। तो एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को स्टेट में डिडक्शन 40,000 की हो गई। वो इतना शोर मचा रहा था कि हमें तो कुछ 40,000 रुपए की रिडक्शन एक रिटायर्ड आदमी को हो गई जो 60 एंड अबव है। दिस इज वन जो रिटायर्ड हुआ है, क्योंकि पेंशन सैलरी ऑल्सो इंक्लूड्स पेंशन। दूसरी बात जरा ध्यान से सुनना, जो छोटे इंप्लॉयर है, एमएससी है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं, उनके इंप्लॉय के लिए वो ईएसआई देते हैं, इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। वो ईएसआई देते हैं और ईएसआई देने के बाद वो कोई 15,000 का रीएम्बर्समेंट नहीं देते। उनको किसका मतलब है, जब ईएसआई दे दिया तो और कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं देते। उस इंप्लॉय को भी जो 15,000 रुपए का है वो बेनिफिट नहीं था, अब उसको 40,000 का बेनिफिट मिला। हो सकता है उसको कन्वेंस अलाउंस भी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी ना मिलता हो, अब उसको मिला। और तीसरा, आप कह रहे हैं बाकी को क्या फायदा हुआ? 5,800 का फायदा हुआ। वो जो 15,000 के झूठे बिल देने पड़ते थे अब देने नहीं पड़ेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल तो बनाने ही पड़ते थे 15,000, चाहे वो हो या ना हो। तो अब गलत बिल देने की जरूरत नहीं है, बोगस बिल देने की जरूरत नहीं है, स्टेट में आपको डिडक्शन 40,000 का मिल जाए। तो सर कुछ बेनिफिट हुआ, हो सकता है कुछ को कम हुआ और कईयों को ज्यादा हुआ, बट स्टार्ट तो हुआ। जो 2006-7 से बंद था अब दोबारा स्टार्ट तो कर दिया। दे में इंक्रीज इट फर्दर ऑल्सो। सो दिस इज रिगार्डिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 एंड द अबॉलिशन ऑफ 17 का वो जो रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस था। अब जरा बड़े ध्यान से सुनना, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो सेक्शन 28 में डाले गए। एक 28(2)(i) की क्लॉज ई बना इंसर्ट की गई है, उसको पहले सुन लीजिए फिर दूसरी बताऊं। अभी तक क्या होता था, दैट इफ यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिजनेस एंड इफ देयर इज एनी टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और देयर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बदले आपको कोई कंपनसेशन मिली, देयर वाज ए डाउट। कई कहते थे ये तो कैपिटल रिसीट है, नॉट टैक्सेबल। कोई कहता था रेवेन्यू रिसीट है, कोई कहता था मैसने प्रॉफिट है, इसको टैक्स नहीं करना चाहिए। लॉ ने क्लियर कर दिया दैट अंडर सेक्शन 28(2)(i) में लिख दिया, वेयर यू रिसीव एनी कंपनसेशन फ्रॉम एनी पर्सन फॉर टर्मिनेशन or modification of the terms and condition of the contract relating to business, it will be treated as business income. अब तो ये क्लियर कट हो गया कि इसको बिजनेस इनकम, रेवेन्यू इनकम मानेंगे, कैपिटल मान ही नहीं सकते। ये पहले क्लियर कट हो गया, ये बात आप क्लियर कर दो। ये था आपका 28(2)(i) ई क्लॉज इंसर्ट। अब जरा सुनने वाली बात है और ये तो डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 47 में लिखा है, कन्वर्जन ऑफ ए कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ए ट्रांसफर। कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कीजिए, ट्रांसफर है। सेक्शन 45(2) में लिखा है, वेयर देयर इज a capital asset converted into stock in trade, it will be regarded as a transfer, but the capital gain will arise not in the year of conversion, it will arise in the previous year in which that converted asset is sold or otherwise। सबको पता है कि उस साल नहीं लगता, आगे लगता था। ध्यान ज्यादा शेयरिंग के ऊपर ही था। अभी तक कैपिटल एसेट शेयर को आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते थे तो आपको अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन जो भी प्रॉफिट होता था उसमें कैपिटल गेन देना पड़ता था जब आप उनको बेचें, और उसके बाद का बिजनेस इनकम है।
लेकिन वाइस वर्सा के बारे में क्लियरिटी नहीं थी. सपोज आई कन्वर्ट द इन्वेंट्री इनटू अ कैपिटल एसेट. I have converted the inventory into capital asset. What is the treatment? पता नहीं था. और लोग हमेशा स्टॉक शेयर्स वाले जो बिजनेस करते थे, अगर उसको कन्वर्ट कर लें एज कैपिटल एसेट और 1 साल के बाद बेचे, आपको सारा कैपिटल गेन लग गया, पहले तो वो भी नहीं था, तो उसके ऊपर टैक्स तो लगना ही नहीं था. कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट, तो टैक्स तो लगेगा ही नहीं. तो ये कर अब बदल दिया है. सुनिए क्या कह रहा है. सेक्शन 28 में क्लॉज VIA डाली है. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ दैट इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम. शैल बी ट्रीटेड एज इनकम. अब क्या होगा, आपने इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर लिया किसमें, कैपिटल एसेट. आपके स्टॉक्स इन्वेंट्री थे, शेयर्स इन्वेंट्री थे. अब शेयर्स को इन्वेंट्री को आपने क्या बना दिया, इन्वेस्टमेंट बनाकर कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया. तो उस दिन जिस दिन कन्वर्ट किया, जो उस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू थी, फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू थी, वो आपकी बिजनेस इनकम मान ली जाएगी, चाहे वो शेयर भी बिके या नहीं. You may not have been able to sell, लेकिन जब कन्वर्ट करते ही वो बिजनेस इनकम मान ली जाएगी. क्या चीज, फेयर मार्केट. मैं एक एग्जांपल देता हूं. आपके पास इन्वेंट्री में शेयर हैं रिलायंस के. इन्वेंट्री मींस स्टॉक एंट्री. उस वक्त शेयर आपके पास है जो आपने 800 रुपए के खरीदे थे उस वक्त, या 500 के खरीदे थे और 1 लाख शेयर थे स्टॉक. नाउ आप इसमें से कन्वर्ट करना चाहते हैं कैपिटल एसेट में, करिए. आज उसकी कीमत सपोज 900 रुपया है, तब 500 रुपया थी, तो पूरा 900 रुपया आपकी इनकम मान ली जाएगी, बिजनेस इनकम उस साल, चाहे अभी वो शेयर बिके या नहीं बिके. अब एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहां क्वेश्चन बात नहीं करता, मैं खुद देता हूं. कह रहे 900 रुपया इनकम मानी जाएगी. सवाल पूछते हैं, वो 500 का तो खरीदा था, इनकम तो 400 होनी चाहिए थी, ये 500 कैसे हो गई. नहीं, 900 ही मानी जाएगी. अब ये कैसे हो सकता है. हो सकता है सर, जब इन्वेंट्री को आपने कन्वर्ट किया, ओपनिंग इन्वेंट्री में आपके 9 लाख के शेयर थे सपोज कीजिए, क्लोजिंग में होंगे नहीं होंगे, और जब क्लोजिंग में है ही नहीं तो प्रॉफिट तो अपने आप खत्म हो गया, उसका तो निकल गया, तो फिर वो पूरा का पूरा को आ गई नहीं प्रॉफिट. मेरी बात को समझ गए. हाउ डू कैलकुलेट प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक में वो 9 लाख था, क्लोजिंग में वो 9 लाख नहीं है, तो प्रॉफिट तो अपने आप 9 लाख कम हो गया कि नहीं हुआ. और वो 9 लाख और जो प्रॉफिट आपने और कमाया, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ली है, वो आपकी बिजनेस. तो ये मत समझना कि 9 लाख माइनस 5 लाख ओनली 4 लाख विल बी कैपिटल गेन, सॉरी बिजनेस इनकम. पूरी 9 लाख की बिजनेस इनकम करी, क्योंकि वो 5 लाख रुपया अब क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है, और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है तो प्रॉफिट तो आपका ऑलरेडी बिजनेस का कम हो चुका है. क्लियर हो गया मेरा पॉइंट. आप बात समझिए, क्योंकि लोग जरा टेक्निकल है, लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, सेल प्राइस माइनस द कॉस्ट शुड बी द बिजनेस इनकम. मैं कह रहा हूं नहीं, पूरी मार्केट वैल्यू इनकम है, क्योंकि वहां पर क्लोजिंग स्टॉक में वो अब है नहीं. क्लियर सर. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 6A. कन्वर्जन करते ही आपकी बिजनेस इनकम मान ली जाए, फेयर मार्केट वैल्यू. अब सवाल आया, क्योंकि आपको कैपिटल एसेट बना लिया, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, उसको जो आपने लिया. एंड सेकंड आया, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा जब मैं बेचना चाहता हूं. तो सेक्शन 49 में सब सेक्शन 9 डाला है, दैट इफ यू हैव कन्वर्टेड एन इन्वेंट्री इनटू व्हाट यू कॉल कैपिटल एसेट, द फेयर मार्केट वैल्यू जिसमें आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, शैल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दोस कैपिटल एसेट, दैट इज शेयर्स. वो उसको कितनी हो गई, 9 लाख उसकी कॉस्ट हो गई. पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, सेक्शन 2 क्लॉज 42A मैंने बताया था, द पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी द डेट ऑन विच दिस स्टॉक वाज कन्वर्टेड, इन्वेंट्री वाज कन्वर्टेड और ट्रीटेड एज कैपिटल. इसलिए 242A को भी चेंज किया, 49(9) भी डाला है, और ये भी आपके लिए किया, क्लियर कर दिया कि ये माना जाएगा. तो प्लीज अब ध्यान से कीजिए, अगर आपने स्टॉक कन्वर्ट कर दिया और उसको कैपिटल एसेट में कर दिया,
तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा उस दिन जिस दिन कन्वर्ट किया एज बिजनेस इनकम, क्योंकि आप दोनों पोर्टफोलियो हो सकते हैं, आपका स्टॉक इन ट्रेड पोर्टफोलियो भी हो सकता है और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी हो सकता है. तो प्लीज बी केयरफुल, डोंट ट्राई टू कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, otherwise you will have to pay tax there and then under the head business income, and the tax will be whatever the profit you have earned, because that profit will be here. So this is section 28(6)(a) read with, of course, section 49(9) as well as section 2 clause 42(a). Next change, sir, Delhi High Court ने इनकम कंप्यूटेशन एंड जो डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड थे उसके ऊपर स्टे लगा दिया था, सेइंग दैट यू कैनॉट ओवर रूल द जुडिशियल डिसीजन, क्योंकि उसमें लिखा था इट विल ओवर रूल द जुडिशियल डिसीजन, तो स्टे लग गया था. इन्होंने उस स्टे की वजह से पूरा लॉ ही बदल दिया है. अब सारे इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड इनकम टैक्स एक्ट में आ गए. इनकम टैक्स एक्ट में पहले सेक्शन 36(1) में डाला है, mark to market loss will be allowed to you, no doubt. But then they have inserted section 48 में कि mark to market loss which are not specified will not be allowed to you. फिर उन्हें section 43AA डाला है relating to foreign currency का जो income computation and disclosure standard था वो 43AA में आ गया. फिर उन्होंने 43CB डाला है जिसमें वो था स्टैंडर्ड कि अगर आपका ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड माना जाएगा, कोई कंप्लीटेड मेथड नहीं माना जाएगा, वो उसको ने 43CB लिख दिया है, इट विल बी फॉलोड, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड विल बी फॉलोड. वो जो रिटेंशन मनी था कि रिटेंशन मनी इनकम मानी जाएगी, कंप्यूटेशन स्टैंडर्ड में था, यहाँ लिखा था, यहाँ लिख दिया है वो इनकम मानी जाएगी, रिटेंशन मनी भी मानी. सब कुछ वो ले आए जो उसमें था. फिर सेक्शन 145A जो पुराना था उसको बदलकर नए सेक्शन लाए 145A एंड 145B. 145A इन्वेंट्री वैल्यूएशन का डाला और 145D वो जो ग्रांट्स का था, इंटरेस्ट ऑन एनहांसमेंट ऑफ कॉस्ट का था. सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब एप्लीकेबल हो गए. किस असेसमेंट ईयर से? असेसमेंट ईयर 2017-18 जिसकी रिटर्न आप फाइल कर चुके हैं. जिन्होंने वो इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोज स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं फॉलो किए उनको वो रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो डिस्क्लोजर पूरा नहीं माना जाएगा. सो बी केयरफुल. 145 कैपिटल ए, 145B, सेक्शन 36(1), सेक्शन 40A30, सेक्शन 43CB, सेक्शन 43AA, ये सारे के सारे सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में आ गए हैं और इसको कहेंगे इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड. जो अभी तक हम बॉदर नहीं कर रहे थे वो अब इनकम टैक्स एक्ट में आ गए. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. आइए, एक सेक्शन 43CA है, सेक्शन 50C है और सेक्शन 56(2)(10) है. क्या था? सेक्शन 50C कहता है, सबको पता है, where the consideration accruing from the transfer of any capital asset being land or building is less than the consideration price actually received, then for the purpose of computing capital gain, the consideration price shall be deemed to be the stamp duty price. यही कहता है सेक्शन. स्टैम्प ड्यूटी प्राइस होगा. तो स्टैम्प ड्यूटी प्राइस अगर 100 करोड़ है और आपने 60 करोड़ बेचा तो आपको 100 करोड़ पे टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो बिजनेस, चाहे वो कैपिटल एसेट है 50C में है, चाहे वो बिजनेस एसेट है 43C में है. और दूसरा सेक्शन 56(2)(10) कहता है द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द परचेज प्राइस विल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज. वेंडर को भी टैक्स लगता है और वेंडी को भी लगता है. ये तो लॉ पता है हमें, सिर्फ छोटा सा शगुफा दिया है कि 5% तक वेरिएशन अलाउ कर देंगे. अब वर्डिंग क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू assessed or assessable does not exceed 105% of the actual consideration. किसका पर्सन? 105% actual consideration. Then the consideration price may be taken as the actual consideration.
मतलब 5% एक्चुअल कंसिडरेशन का मार्जिन है, उसका नहीं है स्टैम्प ड्यूटी प्राइस का। सपोज एक प्राइस है 100 करोड़ और उसकी स्टैम्प ड्यूटी प्राइस है 110 करोड़। 100 करोड़ में 5 जोड़िए 105, नहीं 110 ही मानी जाएगी। सपोज करिए स्टैम्प ड्यूटी प्राइस 104 है और एक्चुअल प्राइस 100 है, 5% जोड़िए 100 में 105, तो ये 100 करोड़ ही माना जाएगा, 104 की जरूरत नहीं होगी। सो आपको 5% का मार्जिन दे दिया इन दी स्टैम्प ड्यूटी प्राइस। बहुत ज़्यादा नहीं किया, इससे ज़्यादा तो हमें वैसे ही मिल जाता था, क्योंकि बातें 10-15% की हम करा करते थे, लेकिन ये 5% का फिक्स कर दिया। और सेक्शन 56(2) में भी कह दिया, इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी प्राइस एंड द परचेज प्राइस इज इन एक्सेस ऑफ द हायर ऑफ द फॉलोइंग टू, वो जो पहले 50,000 रुपये था एंड सेकेंड 5% ऑफ दिस, तो वो आपकी इनकम मान ली। तो कोई फायदा ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 5% आपको कंसेशन मिल गया कि 5% का डिफरेंस हो तो कोई बात नहीं, आपको स्टैम्प ड्यूटी प्राइस नहीं लेनी, आपको एक्चुअल कंसिडरेशन लेना है फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। ये चेंज आया था। एक छोटा सा चेंज है, क्योंकि आप गुजरात में हैं और यहाँ पर गिफ्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी आपको पता ही है क्या है, यहाँ पर ही तो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। वो जो ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग bonds and GDRs covered under 115 AC or rupee dominated bond of an Indian company or any derivative by a non-resident in foreign currency in gift city will not be treated as transfer. वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उसमें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ये उन्होंने डाला है, सेक्शन 47 में चेंज करी है। अब खतरनाक चेंज जो याद कर लेना, एक सेक्शन है 54EC। क्या कहता है 54EC, जो हम बेनिफिट अभी तक लेते रहे, मैं उसको दूसरे तरीके से बोलूंगा, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग टू एनी असेसी फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट shall be exempt to the extent such capital gain is invested in the specified bond within a period of 6 months from the date of transfer, and the exemption is limited to ₹50 lakh. ये सबको पता है 54EC ये है, बदल दिया। वर्डिंग सुनिए क्या कह रहे हैं, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग टू एनी असेसी फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ, पहले लिखा था एनी कैपिटल एसेट, अब लिख दिया फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ। अब सिर्फ 54C लैंड और बिल्डिंग या बोथ में मिलेगा, बाकी आइटम से नहीं मिलेगा। shall be exempt to the extent such capital gain is invested in those bonds of National Highway Authority or Rural Electrification Corporation or any notified by the government. तो पहले सुन लीजिए कि अब सिर्फ लैंड और बिल्डिंग अगर 2 साल के बाद बेचेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लैंड एंड बिल्डिंग अब 2 साल हुआ है, तो वो क्या माना जाएगा, एग्जेम्पशन ले सकते हैं 50 लाख। लेकिन रुकिए, अब जो बॉन्ड होंगे उसका लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स होगा, 5 ईयर्स होगा, 3 ईयर्स नहीं होगा। अभी तक 3 ईयर्स था। रुकिए, अगर आपने इस साल कोई कैपिटल गेन कमाया है और 54EC का बेनिफिट लेना चाहते हैं, ऑल्दो यू आर अलाउड 6 months टू इन्वेस्ट, काइंडली डू इट बाय 31 मार्च। अगर 31 मार्च तक करेंगे तो बॉन्ड 3 साल वाले लॉक इन पीरियड के होंगे। अगर 31 मार्च के बाद करेंगे तो बॉन्ड का पीरियड 5 साल हो जाएगा। सो अब आपको सोचना है कि आपको लॉक इन पीरियड 5 साल करना है इस साल का, या फिर 3 साल करना है। अगर 3 साल है तो 6 महीने की इंतजार मत कीजिए, 31 मार्च तक वो बॉन्ड खरीद लीजिए, नहीं तो 5 साल हो जाएगा। और अगले साल का तो है ही 5 साल 54EC। तो ये चेंज आया सर 54EC में। सेक्शन 56 एक चेंज मैं बता चुका हूं वो जो आया, और एक बहुत छोटा सा चेंज है, जब बिजनेस की अगर कंपनसेशन मिलती है तो बिजनेस में टैक्सेबल होगी, और अदर देन बिजनेस की मिलती है तो वो 56 सेक्शन में 211 में डाल दिया है। वही सेम चीज ये 56 है। आइए, बहुत अच्छा किया है। आपको पता आजकल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में और इंसॉल्वेंसी में एप्लीकेशन एडमिट हो रही है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। आप इंसॉल्वेंसी में जा रहे हैं। अब डिफिकल्टी क्या हो रही थी, जरा ध्यान से सुनना। एक सेक्शन है 79, क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए, वाइडली हेल्ड के लिए नहीं है। 79 सेक्शन कहता है
where there is a business loss in case of a closely held company. This business loss will not be allowed to be carried forward unless the shareholder carrying 50% voting power as on the date when the loss was incurred and also as on the date when the loss is set up should be same. 51% शेयरहोल्डर सेम होंगे तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, नहीं तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। हालांकि पिछले साल स्टार्टअप के लिए कह दिया था, ऐसा नहीं है, वो शेयर होल्डर रहे, परसेंटेज कम हो सकती है। लेकिन अब देखिए इंसॉल्वेंसी आई, आप अप्रूविंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट कर ली है। अब तो शेयर होल्डर दूसरे आएंगे क्योंकि वो प्रमोटर तो रहेंगे नहीं, अब दूसरों ने वो शेयर खरीदे। क्लोजली हेल्ड कंपनी के, वाइडली की नहीं कह रहा, क्लोजली हेल्ड के जब शेयर खरीदे तो 51% रहेगा ही नहीं, तो 51% नहीं रहेगा तो बिजनेस लॉस कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है। लॉ ने क्लियर कर दिया 79 सेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस एप्लीकेशन हैज बीन एडमिटेड अंडर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ हो जाएगा इवन इफ 51% वोटिंग पावर वाले शेयर नहीं सेम नहीं है, लॉस विल बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड। ये एक अच्छा स्टेप लिया है। एक और स्टेप लिया है 115 JB में, आपको पता है जब आप बुक प्रॉफिट निकालते हैं तो उस केस में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस डिडक्ट होता है। एम आई राइट? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड विच एवर इज लेस होता है। लेकिन इंसॉल्वेंसी वालों के केस में जिसकी एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी, नॉट ओनली द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, बोथ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड है, प्लीज द वर्ड इज एंड, पहले तो और विच एवर इज लेस, इनके केस में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी लेस होगा और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी लेस होगा, सो दैट बुक प्रॉफिट कम हो जाए। क्लियर हुआ? ये बेनिफिट उनको दे दिया गया कि आपको लिए 115 JB में भी इसका बेनिफिट हम देने जा रहे हैं। So it is a good proposal because things are going to change. Nobody will go for this because if the losses are not allowed to be set up or even on the losses if you are going to pay MAT, तो इसलिए उन्होंने ये पॉइंट किया और ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट चीज सर, अब जरा ध्यान से सुनना, बहुतों को कंफ्यूजन हो रहा है पता नहीं क्यों। एक 80A(C) सेक्शन है हमारे चैप्टर 6A में। पहला जो था उसका रूल था डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA, 80IB, 80IC, 80ID, 80IE shall not be allowed unless the return of income is furnished before the due date specified under section 139(1). अगर आपको उसकी डिडक्शन लेनी थी तो 139(1) के टाइम पर रिटर्न नहीं भरेंगे तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब जरा ध्यान से सुन, सेक्शन 80 चैप्टर 6A में 4 हेडिंग्स हैं। एक है हेडिंग नंबर A, उसमें लिखा हुआ है मिसलेनियस प्रोविजंस। फिर है हेडिंग नंबर B, उसका मतलब है डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सर्टन पेमेंट्स, वो हेडिंग B है चैप्टर 6A में 80 के नीचे। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सर्टन पेमेंट विच स्टार्ट्स फ्रॉम 80C एंड गोज अप टू 80GGC। 80C से 80GGC हेडिंग B में आती है। Then third heading is heading C. C heading में आता है 80H, 80H तो है ही नहीं, वो शुरू होता है 80IA से लेकर 80RRB, 80IA से लेकर 80RRB। फिर हेडिंग आता है CA और CA स्टार्ट होता है 80TTA, अब 80TTB भी आ गया और 80U। जरा ध्यान से सुनना, मैंने 3 बोले, A miscellaneous, B payment, C income, D 80TT onwards। अब क्या लिख दिया है? No deduction will be allowed on account of any income, on account of any deduction referred to in C heading। C heading का मतलब अब सिर्फ 80IA, 80IB, 80IC, 80ID और 80I नहीं रहा, any deduction right from 80IA to 80RRB। अगर आप रिटर्न ड्यू डेट पर नहीं भरेंगे, मेरा जैसा आदमी है जिसको स्टैंडर्ड वो मिलता है 80QQB में और रॉयल्टी का 100% और 3 लाख विच एवर इज लेस, अगर मैं रिटर्न लेट करूंगा तो मुझे वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसमें सेक्शन 80JJA भी आता है, 80RRB भी आता है, कई 80OL भी आता, LA भी आता है,
सो सारे के सारे अगर सी में फॉल कर रहे हैं, प्लीज एटीसी से कोई लेना नहीं है। एटीसी टू एटीजीसी की रिटर्न लेट हो सकती है, एटीटीटी की एटीयू तक की रिटर्न लेट हो सकती है, लेकिन अगर आपने जो इनकम की रिडक्शन लेनी है जो एटीआईए से लेकर एटीआरआरबी में फॉल करती है, तो प्लीज उसकी रिटर्न ड्यू डेट पर फॉल कर देना, नहीं तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो डिडक्शन नहीं मिलेगी फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1920। आई हैव मेड इट क्लियर। को समबडी से लोग पूछ रहे हैं एटीसी वाला भी आ गया, ऐसा कुछ नहीं आया, ओनली फॉर एटीआईए टू एटीआरआरबी वाली। क्लियर है सर? ये एक मैंने डाला एटीएसी। नेक्स्ट चेंज जो हुआ है, देखिए बहुत अच्छा सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ किया है इस बार मोदी जी ने। मैं तो इनको सीनियर सिटीजन बजट कह रहा हूं, क्योंकि पहले रिटायरमेंट वालों को 40,000 रुपये डिडक्शन दे दिया सैलरी का। अब आया सेक्शन 80D। जरा वर्ड सुनना 80D में क्या हुआ है। अभी तक 80D में दो कॉन्सेप्ट होते थे, सीनियर सिटीजन एंड वेरी सीनियर सिटीजन। वेरी सीनियर सिटीजन मीन्स 80 एंड अबव, एंड सीनियर सिटीजन 60 लेस देन 80, ये होते थे। उसमें क्या लिखा था मेडिक्लेम में, क्योंकि 80 से अबव वाला का कोई इंश्योरेंस नहीं करता, तो लिखा था आपका इंश्योरेंस नहीं है तो आप एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर कर सकते हैं एंड यू विल बी अलाउड ए डिडक्शन ऑफ द 30,000 रुपीज। अगर वो मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर करेंगे 30,000, बट ओनली वेरी सीनियर सिटीजन। अब क्या चेंज किया है, वेरी वर्ड हटा दिया है। अब सारे सीनियर सिटीजन एक ही कैटेगरी में आ गए, मीनिंग देयर बाय मैं भी सीनियर सिटीजन हूं, अगर मेरी इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, तो मैं डिडक्शन मेडिक्लेम की लूंगा। अगर मेरा मेडिक्लेम नहीं है और मैं यहां कर नहीं रहा मेरा कोई इंश्योरेंस, तो मुझे एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर अलाउड होंगे। और वो जो लिमिट 30,000 थी उसको 50,000 कर दिया है। आप देखिए 60 साल से ऊपर जिसकी इंश्योरेंस नहीं है, पहले कराता नहीं था कोई और अब करते नहीं है वो हमारी, उसको भी अब डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपए की। क्या? और मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर। भगवान करे मैं बीमार ना पड़ूं, लेकिन डिडक्शन तो फिर भी लूंगा। बात समझ में आ गया? डिडक्शन 50,000 की है। जो दवाइयां वगैरह आपके यहाँ आती हैं, अगर 60 साल से ऊपर हैं तो 50,000 तक का डिडक्शन आपको और आपके स्पाउस है तो मिलेगा। तो 50,000 का सीनियर सिटीजन को ये एक्स्ट्रा। और नॉर्मली सीनियर सिटीजन की कोई ना कोई दवाई तो चलती रहती है, किसी को डायबिटीज की दवाई खा रहा है, कोई हार्ट पेशेंट है उसकी जो है, कोई उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, और सीए का ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा हो ही जाता है जब ड्यू डेट आती है। तो ये सबको अब ये डिडक्शन अगर 60 साल से ऊपर है 50,000 की मिलेगी। पहले नहीं मिलती थी अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं थी, अब तो इंश्योरेंस नहीं भी आइदर मिलेगी, या तो इंश्योरेंस में जाइए वहां लीजिए, नहीं तो मेडिकल में ले लीजिए, आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर मिलेगा 80D में। ये एक बहुत अच्छा स्टेप किया है। नेक्स्ट ऑल्सो एक सेक्शन है 80DD-B। वो क्या है? एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन दिस मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी स्पेसिफाइड एलिमेंट और डिजीज। जो टर्मिनल डिजीज होते हैं उसके लिए एक एक्सपेंडिचर मिलता है फॉर योर सेल्फ और ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट ऑन यू। और वो डिडक्शन था, अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है पेशेंट तो 40,000, अगर सीनियर सिटीजन है तो 60,000, अगर वेरी सीनियर सिटीजन है तो 80,000 डिडक्शन था फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट और डिसीज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 3A ऑफ द इनकम टैक्स रूल। अब क्या कर दिया? वेरी वाला वर्ड हटा दिया है। अब कोई भी सीनियर सिटीजन है 60 से ऊपर, 60 वाले को भी 1 लाख कर दिया है और 80,000 का भी 1 लाख कर दिया। तो अब 1 लाख रुपया टर्मिनल डिजीज का भी डिडक्शन मिलेगा इन एडिशन टू 80D। वहां तो 50 मिलना है, या कोई भगवान ना करे टर्मिनल डिजीज हो गई, वो रूल 3A में लिखी है, तो उसके ऊपर खर्चा किया तो 1 लाख रुपए का फॉर हिमसेल्फ और एनी पेशेंट डिपेंडेंट ऑन हिम, तो वो मिलेगा। 80DD-B आया है। नेक्स्ट सेक्शन सर, छोटा सा चेंज है 80IAC में। पीछे 80IC स्टार्टअप के लिए आया था कि आप एलिजिबल बिजनेस करते हैं तो आपको 100% प्रॉफिट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years मिलता है, प्रोवाइडेड योर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 25 करोड़। 100% प्रॉफिट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, 3 consecutive years आउट ऑफ 7 years। क्या चेंज किया है? ये स्टार्टअप वाला है। एक तो ये एलिजिबल बिजनेस की डेफिनेशन को एनलार्ज कर दिया है।
पहले लिमिटेड थी, अब एनलार्ज कर दिया। सेकंड, पहले था कि कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस शुड टेक प्लेस बिटवीन 1/4/2016 एंड बिफोर 1 अप्रैल 2019, अब कर दिया है 2021, 2 साल पीरियड बढ़ा दिया है। और साथ में कह दिया है कि आपको ये डिडक्शन 100% मिलेगी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years प्रोवाइडेड योर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 25 करोड़ फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years। तो आपको ये डिडक्शन ATIC में मिलेगी। एक अच्छी डिडक्शन है सर जो पहले भी थी, 80JJAA। ये क्या डिडक्शन थी? आपको वर्कमैन इंप्लॉय करो जिसकी सैलरी 25,000 से ऊपर नहीं है, जितने भी इंप्लॉय करोगे आपको एडिशनल कॉस्ट जो लगी उसका 30% डिडक्शन मिलता है, 30%। लेकिन 30% डिडक्शन तब मिलता था जब मिनिमम उसको प्रीवियस में इंप्लॉय करो फॉर 240 डेज। अगर वर्कर 240 डेज आपने इंप्लॉय करा और उसकी सैलरी 25,000 से ऊपर नहीं है तो 30% एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। लेकिन कुछ इंडस्ट्री सीजनल होती है, उन्होंने फिर क्या किया, फॉर अपैरल इंडस्ट्री इट इज नॉट 240 डेज, इट इज 150 डेज, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट 150 डेज, बाकियों के लिए 240। अब चेंज क्या किया है, अपैरल इंडस्ट्री के साथ साथ फुटवियर एंड लेदर गुड्स इंडस्ट्री को भी कर दिया 150 डेज। सो वो अगर 150 डेज भी इंप्लॉय करेंगे तो उनको डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ द एडिशनल वेजेस पेड टू देम एडिशनल। अब सवाल आया, क्योंकि मिनिमम 240 या 150 डेज था तो मुझे वर्कर को एम्प्लॉय करना पड़ता था अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में, क्योंकि 240 दिन तो मिनिमम चाहिए। अगर मैं आज किसी वर्कर को एम्प्लॉय करता हूं तो उसका मुझे डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो 240 दिन होंगे नहीं, और 31 मार्च के बाद वो तो एडिशनल वर्कर माना ही नहीं जाएगा, वो तो पुराना वर्कर हो जाएगा, तो मिलेगा नहीं। बड़ा अच्छा किया है। अगर आपने कोई वर्कर एम्प्लॉय किया है इस साल लेस देन 240 डेज या 150 डेज है द केस में भी कोई बात नहीं, if he continues to be there in the employment next year and he completes 240 days or 150 days, उसका वो अगले साल डिडक्शन मिलेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। सो जरूरी नहीं है कि अब आपको शुरू में ही एम्प्लॉय करना है, आप कभी भी एम्प्लॉय करिए, इस साल डिडक्शन नहीं मिला तो अगले साल जरूर मिलेगा। आइए, और एक सीनियर सिटीजन का कमाल कर दिया मोदी जी ने, कमाल ये किया है, नया सेक्शन डाला है 80TTB। क्या सेक्शन डाला है? 80TTA में लिख दिया कि ये सीनियर सिटीजन के लिए अब नहीं है, अब सीनियर सिटीजन के लिए 80TTB होगा। Where the gross total income of a senior citizen includes any interest on deposit with a banking company or a cooperative bank or a post office, a deduction will be allowed to the extent of the so much of interest subject to maximum of rupees 50,000। 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी आपको। कोई भी डिपॉजिट हो, चाहे वो सेविंग, उधर वहां तो सेविंग बैंक है, वहां पे सेविंग बैंक है 80TTA में, वो 60 साल से कम वालों का हो गया, 60 साल से ऊपर वाले कोई भी डिपॉजिट करें, सेविंग, रेकरिंग, फिक्स्ड, सबका 50,000 रुपया डिडक्शन है। 50,000 रुपया डिडक्शन सर दे दिया, कहां 10 था और कहां 50 हो गया। 50 डिडक्शन सीनियर से, 50 यहां मिल गया, 50 मेडिकल का मिल गया, अगर वो पेंशनर है तो 40 वहां भी मिल गया। ये सीनियर सिटीजन को इतना बेनिफिट मिला है सर। 80TTB, a new section inserted from next year for senior citizen, एंड इसी वजह से 194 में जो TDS कटता था 10,000 के लिए, 10,000 के ऊपर का, उसको 50,000 कर दिया फॉर सीनियर सिटीजन। इफ इट एक्सीड्स 50,000 देन ओनली TDS विल बी डिडक्टेड, अदरवाइज TDS विल नॉट बी। सो इतना बढ़िया सेक्शन सर, सीनियर सिटीजन को तो कमाल कर दिया। 50 यहाँ दिया, 50 मेडिकल का दिया, 40 पेंशनर को दिया, ये बेनिफिट उनको मिलेगा। तो ये 80TTB नया सेक्शन डाला है। नेक्स्ट सेक्शन, अब थोड़ा सा घबराना पड़ेगा, बहुत ही खतरनाक सेक्शन डाला है 115O। जरा ध्यान से सुनना, एक सेक्शन सबको पता है, 222E। क्या है 222E? डीम डिविडेंड का।
where any advance or loan is given by a closely held company to a shareholder who holds 10% voting power in the company, or to a concern in which such shareholder holds 20%, then such amount of loan to the extent of accumulated profit exclusive of capitalized profit shall be treated as a deemed dividend. याद है नोटिस आते हैं कि आपने एडवांस दिया हुआ क्लोजली हेल्ड कंपनी में, क्योंकि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, अपने ही शेयर होल्डर को एडवांस दे दिया, लोन दे दिया, ये डीम्ड डिविडेंड है और ये टैक्सेबल था इन दी हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। लेकिन एक नोटिस कंपनी को भी आता था कि आपने उस पर 194 में टीडीएस क्यों नहीं काटा, क्योंकि डिविडेंड है तो टीडीएस भी। सो दो होते थे, एक तो शेयर होल्डर को टैक्स लगता था और दूसरा कंपनी को नोटिस आता था फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अब क्या हुआ है जरा ध्यान से सुनो, बेड़ा गर्क कर दिया है, ये भी बता दो। इफ यू गिव एनी एडवांस और लोन a company which is a closely held company to a shareholder who holds 10% voting power, to a concern in which such a shareholder holds 20% voting power, तो वो जो amount of loan और यहाँ एडवांस है वो डीप डिविडेंड मानकर कंपनी को अब टैक्स देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा। एंड द रेट ऑफ टैक्स विल बी 30%, 30% विदाउट ग्रॉसिंग। वैसे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 20%, 20.358% है, या 30% देना पड़ेगा कंपनी को। जिस दिन लोन और एडवांस दिया 14 दिन के अंदर अंदर ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। आपको पता है 115 में अब हर कंपनी मर गई क्लोजली है, और हम साथ में मरे वो भी बताता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी सर्कुलर आया था पीछे, बिजनेस एडवांस अगर प्रूव हो जाए तो नहीं होगा। अब डिफिकल्टी क्या आनी है, फॉर्म 3 CD में आइटम नंबर 36 में हमें देना पड़ता है कि 115 का क्या हुआ और कितना डिविडेंड जमा कराया एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट। अब इस केस में डिस्प्यूट है कि वो लोन और एडवांस है या बिजनेस एडवांस है। अब डिसीजन तो आपको लेके देना है कि ये टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। कंपनी को 30% टैक्स देना है। ये डिफिकल्ट, ये क्यों किया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अभी जजमेंट आई थी टैक्स तो लगना चाहिए, लेकिन कंपनी को कैसे लगा सकते हैं? कंपनी तो शेयर होल्डर ही नहीं। अगर आप कंपनी को लोन दे रहे हैं या कंसर्न को, तो इसलिए उन्होंने कहा डिसीजन लो, ये डिसीजन आ। अब सब मर गए कि कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी कोशिश मत करना कोई लोन एडवांस देने की। इवन इफ वो नेक्स्ट डे रिटर्न हो जाए तो भी डीम डिविडेंड है। इवन इफ आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो भी डीम डिविडेंड है। ये मैं आपको बता दूं, आप कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी एडवांस और लोन नहीं दे सकती, सिर्फ वो दे सकती है जिसकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही नहीं है। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो लोन और एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सक्लूसिव ऑफ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट विल बी लायबल फॉर a dividend distribution tax at the rate of 30%. सो ये बहुत खतरनाक प्रोविजन है, बी केयरफुल, क्योंकि हमारे पास वो करने के बाद आते हैं, हमारे से पूछ के नहीं करते। बाद में कहते हैं सर मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो दे दिया। सर एक पैसा भी एडवांस दोगे ना, गाड़ी का एडवांस है। हमारी कंपनियों में तो ये क्या है, मेरा वो लाइफ इंश्योरेंस भी मेरी कंपनी जमा करा रही है, मेरा इनकम टैक्स भी मेरी कंपनी जमा करा रही है, मेरी बीवी का भी वही करा रही है। ये सारे लोन और एडवांस हैं। आपको मत समझना ये लोन और एडवांस नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो डायरेक्टर या शेयर होल्डर का कैसे जमा करा सकते हैं? वो लोन और एडवांस ही तो है, वो कैसे करा? लेकिन हमारे यहां तो यही करते हैं, उठा कंपनी का चेक और दे दो। सर ये सब पकड़े जाएंगे, सबके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। हालांकि वो लोन आप वापस करते हो वो तो एडजस्ट कर लेते हो, या तो पहले ही लोन खड़ा कर लो अपना और रीपेमेंट ऑफ लोन के हिसाब से वो पेमेंट कर दे तो ठीक है। अगर आपका पैसा ऑलरेडी ड्यू है और सैलरी ड्यू है और उसके अगेंस्ट वो पेमेंट कर रहा है फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आउटस्टैंडिंग नहीं है, आपने 1 रुपए का भी एडवांस दिया, 30% टैक्स लग जाना है टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लीज बहुत ही खतरनाक प्रोविजन ये आया है। अब उससे भी बड़ा खतरनाक प्रोविजन जिसके आप इंतजार कर रहे हैं, और वो है 112 कैपिटल ए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लग गया है 10%। सभी कह रहे हैं लगना नहीं चाहिए था,
लगता है तो फिर वो एसटीटी क्यों नहीं हटाया? एसटीटी तो अभी भी है और 10% एक्स्ट्रा लग गया। मुझे मालूम है ये डिस्कशन हुआ था, हमें भी पूछा गया था कि वो टास्क फोर्स से, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट टैक्सेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कुछ बॉम्बे से लोग आकर प्रेजेंटेशन दे गए थे कि इसमें लगना चाहिए, तो हमसे पूछा गया। हमने कहा सर हम इनकम टैक्स रीड्राफ्ट करने जा रहे हैं, सारा इनकम टैक्स दोबारा बनेगा, तो उस केस वक्त हम स्टडी कर लेते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है, तो थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। फिर भी बोला गया नहीं, दूसरा सजेशन दिया सर 1 साल का 2 साल कर लीजिए, लेकिन टैक्स मत लगाइए। सजेशन है, हमें नहीं पता क्या करना था। तीसरा सजेशन दिया गया अगर लगाना है तो मैक्सिमम 5% लगा लीजिए, ताकि टोकन लगा लीजिए, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तीनों सजेशन नहीं माने गए, 10% लगा दिया गया। अभी भी सजेशन दिया है आधे का फैसला कर लो, 7.5 कर दो, देखते हैं क्या होगा। या दूसरा सजेशन और है, वो थोड़ी देर में बताता हूँ जब मैं सेक्शन कंप्लीट करूँगा। बट लगा है क्योंकि फिगर्स प्रेजेंट करी गई वहाँ पर वो रॉन्ग की गई कि 3,47,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इस पर आपको टैक्स मिलेगा 3,47,000 करोड़। ये सोचे बगैर कि सर कईयों को तो लॉस भी हुआ होगा, अब वो लॉस तो सेटअप होता ही नहीं है। आपने लॉस की फिगर तो बताई नहीं, ये बता दिया कि 3,47,000 करोड़ का टैक्स आपको नुकसान हो गया। सबको लॉस नहीं हुआ होगा, मानता हूं, कुछ को तो हुआ, वो लॉस तो सेटअप होता ही नहीं है, लेकिन नहीं करा गया, उन्होंने लगा दिया है। और सेक्शन 112A की वर्डिंग सुनना क्या है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सेक्शन 112। 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट है। Notwithstanding anything contained under section 112, where the gross total income of an assessee includes gross total income of the assessee shall be taxable as per subsection 2 of 112A. क्या कहता है? Notwithstanding anything contained under section 112 which relates to long term capital gain, where the gross total income of the assessee shall be taxable under subsection 2 if number 1 there is a capital gain, 2 the capital gain is on account of the shares on which security transaction has been paid at the time of its acquisition as well as at the time of इट्स ट्रांसफर। दोनों टाइम पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पीछे आ गया था 1/4/2004 के बाद कि भाई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन कंपलसरी हो गया। हाँ, एक नोटिफिकेशन डाल दिया था कि इन चीज़ों में कंपलसरी नहीं है, डाला था, आ चुका है। थर्ड, अगर वो म्यूचुअल फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन शुड हैव बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। जब आप परचेज करते तो एसटीटी नहीं होता। एंड 3, it must be a long term capital gain. टैक्स कितना लगेगा? 10% of an amount exceeding 1 lakh। 1 लाख के ऊपर कुछ नहीं लगेगा, 1 लाख से ऊपर जितना भी कैपिटल गेन होगा 10% लगेगा। अगर आपका 1,80,000 है, एक माफ कर देंगे 80,000 पर 10%। 4 लाख है, एक माफ कर देंगे 3 लाख पर। क्वेश्चन ये है कि छोटे छोटे के लिए तो ठीक है, 1 लाख रुपया माफ हो गया, लेकिन बाकियों को नहीं हुआ। लेकिन एक चीज लिख दी है कि इफ योर टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ फ्रॉम अदर सोर्सेज इज लेस देन द एग्जेम्पशन लिमिट, सो मच ऑफ द कैपिटल गेन विल बी शिफ्टेड टू अदर इनकम टू क्लेम ए फुल एग्जेम्पशन ऑफ 2,50,000 और 3 लाख और 5। तो अगर कैपिटल गेन है और आपकी अदर इनकम नहीं है तो 1 लाख तो वैसे ही माफ है और 2.5 लाख ये भी माफ होगा, क्योंकि वो शिफ्ट हो जाएगा फॉर अदर इनकम। अगर वहां पर 1 लाख इनकम है तो 1.5 लाख शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 2 लाख शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन हैं तो 4 लाख शिफ्ट होगा। तो शेयर सीनियर सिटीजन के नाम पर कमाइए, अगर वेरी सीनियर के कमाइए, अगर वेरी सीनियर की और इनकम नहीं है तो, क्योंकि 5 का बेनिफिट तो आप ले सकते हैं, 5 वो और 1 वो, 6 लाख।
लेकिन ये लॉ बन गया सर। ये सब सेक्शन 2 था। 3 में लिखा है, यहाँ पर आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, गिफ्ट सिटी है, इसमें तो वो लगता ही नहीं है क्या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो टैक्स तो उनको भी लगेगा, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं दिया, फिर भी 10% लगेगा। सब सेक्शन 4 में लिखा है, सब सेक्शन 4 में, कि हम नोटिफिकेशन इशू करेंगे किन केसेस में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स परचेज में नहीं दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले भी किया हुआ है, दोबारा आ गया। सब सेक्शन 5 का बेड़ा गर्क कर दिया कि आपको कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर नॉन रेजिडेंट हैं तो प्रोवाइजो 1 का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरे पास लिस्टेड शेयर हैं, मैं ऑफ मार्केट में बेचता हूं, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है आइदर टू पे टैक्स 20% आफ्टर इंडेक्सेशन और टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 10% विदाउट इंडेक्सेशन। लेकिन अगर ये लिस्टेड हैं और मैं स्टॉक एक्सचेंज में बेच रहा हूं तो मुझे 10% देना ही पड़ेगा और इंडेक्सेशन नहीं अलाउड होगा, नहीं, ऑलवेज 10%। चाहे मैंने 20 साल पहले शेयर खरीदे, 10% मुझे देना ही पड़ेगा। हाँ, एक ग्रैंड फादरिंग की है, बड़ी इंटरेस्टिंग ग्रैंड फादरिंग है, सब सेक्शन 6 में डाला है। पहले सम अप करता हूं उसमें क्या है इजी में, फिर उसको समझाऊंगा क्या कॉम्प्लिकेशन की है। 31 जनवरी तक जितना भी कैपिटल गेन आपको हो चुका है वो हमेशा माफ रहेगा। अगर आपके पास शेयर पुराने हैं, 31 जनवरी तक जितना भी कैपिटल गेन हो चुका है, जितना भी एप्रिसिएशन हो चुका है, वो पूरा का पूरा माफ होगा। अगर वो जब बेचेंगे वो लॉन्ग टर्म है तो अप टू 31 जनवरी। 31 जनवरी उसके बाद एडवांटेज क्या है, प्रॉफिट में कभी टैक्स नहीं देना पड़ेगा जितना भी हुआ, अगर लॉस हुआ तो पूरा अलाउड होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जरा समझना, जरा टिपिकल एग्जांपल है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताइए, कैपिटल गेन कैसे निकलता है, कंसिडरेशन प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ऐसे कैपिटल गेन निकलता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना है, कहता है ए और बी। ए में है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने का खरीदा था। बी, रुकिए, पहले बी में लोअर ऑफ द 2 आइटम कर लीजिए। लोअर ऑफ द 2 आइटम क्या, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी एंड 2 सेल प्राइस जब आप उसको बेचेंगे, विच एवर इज लोअर। फिर ए से कंपेयर किए, अब हायर लेना है, अब हायर लेना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक शेयर खरीदा है 400 रुपए का, उसकी एक्चुअल कॉस्ट 400 है। 31 जनवरी को उसकी प्राइस 600 रुपया हो गई और उसके बाद आपने बेचा लॉन्ग टर्म 670 रुपए में। तो 670 में से आपने 500 का खरीदा, मैंने कितना लिया था, 400 रुपए का, 270 प्रॉफिट है। लेकिन रुकिए, 31 जनवरी को कितना था, 600। तो 200 रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 70 रुपए पे टैक्स लगेगा, 10%। आई अगेन रिपीट, 400 का लिया, 31 जनवरी को 600 था, बेचा 670। 600 और 670 विच एवर इज लेस 600। ए एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर 600। इसका 670 माइनस 600, सिर्फ 70 रुपए पे टैक्स लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, 670। लेकिन सपोज करो वो 500 रुपए का हो गया, जो 600 का था अभी 500 का हो गया, तो आपको 500 माइनस 670 कितना था, 600। लेकिन 600 लेना है तो हायर लेना है, तो 600, तो लॉस हो गया 100 रुपए का, ये 100 रुपए का लॉस मिलेगा। तो ग्रैंडफादरिंग में प्रॉफिट अप टू 31 जनवरी की कोई चिंता नहीं कीजिए, वो तो मिलेगा ही मिलेगा उस शेयर का। उसके बाद कोई जो प्रॉफिट हुआ है वो नहीं, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉस हो गया तो लॉस पूरा मिलेगा, और लॉस इज अलाउड टू बी सेट अप फ्रॉम लॉन्ग टर्म। और एक और बात है, अभी तो चांस पूरा है, 1038 31 मार्च तक तो है। तो अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म होने जा रहा है, 31 मार्च तक बेच दीजिए, आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। अभी भी 31 मार्च तक बेच दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट इज 30। दिस इज एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट ईयर। 1038 इज गोइंग टू बी अबॉलिश्ड फ्रॉम 31 मार्च 2018। तो आप अगर हैं अभी भी
अगर लॉन्ग टर्म है तो बेच दीजिए, आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं बेचना चाहते तो घबराइए नहीं, अप टू 31 जनवरी जो प्रॉफिट हो चुका है उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना है, सिर्फ बाद का देना है। तो इसलिए एक कंसेशन तो दे दिया। पुराना आपके पास बोनस शेयर पड़े हुए हैं, हो सकता है बोनस शेयर की कीमत 0 है, क्योंकि अगर अलॉटेड हुए बिफोर 2001 होते तो मार्केट वैल्यू लेते हैं, आफ्टर 2001 है तो वो 0 कॉस्ट है। अब वो बोनस शेयर बेचना चाहते हैं तो कॉस्ट क्या मानी जाएगी? 0 नहीं मानी जाएगी। 0 और 31 जनवरी का जो वो है मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो 31 जनवरी तक का मिल गया, तो इतना प्रॉफिट तो आपका हो गया ना, उसके बाद ही तो है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? सो ऐसा नहीं है, ग्रैंड फादरिंग में बहुत एडवांटेज दिया है, लेकिन यस आगे से कह दिया है कि आपको 10% देना पड़ेगा। हम ट्राई करेंगे इस 10 से कम कराने की, लेकिन एक और चीज बता दी है, इस प्रॉफिट से चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो तो पहले भी नहीं मिलती लॉन्ग टर्म से, तो इसमें भी क्लियर कर दिया है। और एक और बता दिया गया है, इस गेन की वजह से 87A का रिलीफ नहीं मिलेगा। इस गेन से जो टैक्स बनेगा उसका 87A भी नहीं मिलेगा। 87A वो जो मिलता है 3,500 रुपया अप टू इनकम ऑफ 3.5 लाख, वो नहीं मिलेगा। 87A रिबेट नहीं मिलेगी, ये भी क्लियर कर दिया है सब सेक्शन 7 और 8 में। तो ये आया है 112 कैपिटल A। एक और मुसीबत डाल दी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का जब डिविडेंड इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती थी तो कोई इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पड़ता था, सिर्फ मार्केट म्यूचुअल फंड और या मनी मार्केट म्यूचुअल फंड या लिक्विड फंड में पड़ता था, इस पर कभी टैक्स नहीं होता। लीजिए 154R चेंज कर दिया, 115R चेंज कर दिया।